Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will describe the architecture of microprocessor 8085. This topic is meant for MSc students of Physics and Electronics and also for BE and BTech students of EEE and ECE branches. The GRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Organization of a microcomputer. In figure 1, we have shown you the block diagram of a microcomputer. Its various components are shown here. This is the microprocessor unit, which has three components: ALU, that is arithmetic and logic unit. The second one is register array. This is simply a group of registers that is used to store information. And this is the control unit, which sends you the signals for a process to be started. This is the input output device. That means input out device में क्या क्या होता है? This is keyboard, scanner, camera, joystick, light pen, and so on. In output device, we have printer, we have a different port, we have video and audio. This is your system bus. Bus is simply a group of wires. Which kind of wires? We will discuss later on. This is the memory part. ROM and read and write memory. Okay. In ROM part, we have simply information stored, data stored in this part. You cannot write anything in this part of the memory element. Whereas in this part, you can read, also write, and receive data in this part. Okay. All the various components are connected to a common communication path called bus. So this is system bus. It has three parts, as you will see later on. We now describe the various components of the microprocessor or microcomputer system. So microprocessor 8085. A typical microprocessor consists of arithmetic and logic unit in association with control unit to process the instruction execution. जितने भी microprocessors हैं, they are based on the principle of store program concept. So what is a store program concept? In store program concept, programs or instructions are sequentially stored in the memory location that are to be executed. जिस प्रोग्राम को करना है उसके बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं सो सीक्वेंशियली मेमोरी लोकेशन में स्टोर हैं. टू डू एनी टास्क यूजिंग अ माइक्रोप्रोसेसर इज टू बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर. यूजर को प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. सो द प्रोग्रामर मस्ट हैव आइडिया अबाउट इट्स इंटरनल रिसोर्सेज, फीचर्स एंड सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन. क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया है पहले से, क्या फीचर्स हैं, क्या रिसोर्सेज उसके हैं, ये सब प्रोग्रामर को पता होना चाहिए. So each microprocessor has a set of instructions, a list which is provided by the microprocessor manufacturer. The instruction set of a microprocessor is provided in two forms, the binary machine language and or mnemonics. जो भी डेटा स्टोर है माइक्रोप्रोसेसर में, जहाँ माइक्रोप्रोसेसर जो भाषा समझ सकता है वो सिर्फ बाइनरी की भाषा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ 0 and 1. जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में देने पर ही वो समझता है what it is being asked to do. ओके. जैसे एक इंस्ट्रक्शन है हमारा 10010000. इस स्टैंड्स फॉर ऐड बी. ये इंस्ट्रक्शन है कि बी को ऐड करो. एडिंग कहाँ होगी? एडिंग होगी माइक्रोप्रोसेसर के एएलयू में. ठीक है. ये हमारा इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? ऐड बी के लिए. तो बाइनरी सिर्फ ये भाषा समझता है. तो ये जो हमने लिखा है ऐड बी, ये हमारे लिए है. दिस इज नोन एज निमोनिक. तो हर एक इंस्ट्रक्शन को हमने एक नाम दे दिया है अपने समझने के लिए, अपने याद रखने के लिए. इसके लिए ये नाम है ऐड बी, मतलब बी को ऐड करो. बी इज नॉट ए नंबर, बी इज ए रजिस्टर. ऐड बी का मतलब क्या हुआ कि बी रजिस्टर में जो भी डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में जो डेटा अवेलेबल है उसमें इसको ऐड कर दो. और
जो रिजल्ट है उसको एक्यूमुलेटर में ही रहने दो। ठीक है, दिस इज मीनिंग ऑफ दिस। तो ये होगी बात। तो ये जो 0 और 1 के फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। कि हमारे लिए ये समझना कठिन है, इतने लंबे इंस्ट्रक्शंस हैं, कई इंस्ट्रक्शन हैं, एक इंस्ट्रक्शन तो है नहीं, कई ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे लिए मुश्किल है सब इंस्ट्रक्शन को याद रखना इन बाइनरी फॉर्म। सो देयरफॉर वी हैव गिवन एवरी बाइनरी पैटर्न इन न्यू नेम in English like word that is known as mnemonics. Mnemonic is a Greek word which stands for memory aid. So this is simply used to remind us of what the program is being asked to do. So set of mnemonics forms the assembly language. ठीक है, कन्वर्शन होगा असेंबली लैंग्वेज से बाइनरी मशीन लैंग्वेज में। जो ये काम करता है उसको हम बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, सो असेंबली लैंग्वेज लेवल से हम तो प्रोग्राम लिखते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में, लेकिन मशीन समझता है उसको 0 1 के फॉर्म में। तो हम जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन जो निमोनिक्स के फॉर्म में है वो पहले कन्वर्ट होगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये काम कौन करता है? ये काम करता है असेंबलर। ओके, 8085 इज प्रोनाउंस्ड एज 8085। ओके, इसको हम बोलते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर। It is an 8-bit microprocessor designed by Intel in 1977 using NMOS technology. It is used in washing machines, microwave ovens, mobile phones, etc. It has the following features. क्या क्या फीचर हैं इसके? इसमें डेटा बस जो है वो 8 बिट का है। ठीक है, 8 बिट, 1 बिट मीन्स 1 बाइनरी डिजिट, तो 8 बिट डेटा बस है। It has 16-bit address bus which can address up to 64 kilobyte. एक 16-bit प्रोग्राम काउंटर है और 16-bit स्टैक पॉइंटर है। 6 8-bit रजिस्टर्स हैं। कितने रजिस्टर हैं इसके पास? 6। और कैसे रजिस्टर हैं वो? 8 बिट के रजिस्टर हैं that can store 8 binary digits at a time. They are paired. पेयरिंग कैसे है उनकी? BCDEHL। ओके, एक और रजिस्टर है, वो है, उसका नाम स्पेसिफिक है, दैट इज ए, लिखते हैं उसको ए से, और BC स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। ये एक्यूमुलेटर ही वो रजिस्टर है जहां पर मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ABCDEHL सारे रजिस्टर्स हैं, बट ए इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड। जितने भी ऑपरेशंस होंगे, मैथमेटिकल हो लॉजिकल हो, वो एक्यूमुलेटर में ही होते हैं। तो ये रजिस्टर जो हैं सो 2 के पेयर में यूज किए जा सकते हैं। दे कैन यूज इन पेयर्स। पेयर कौन कौन से होंगे? पेयर होंगे BC एक साथ, DE एक साथ और HL एक साथ। इट रिक्वायर्स 5 वोल्ट सप्लाई टू ऑपरेट एट 3.2 मेगाहर्ट्ज सिंगल फेज क्लॉक। यहाँ देखिए आपको हम दिखा रहे हैं सिंप्लिफाइड मॉडल ऑफ CPU स्ट्रक्चर। देखिए, ये ALU हो गया, दिस इज कंट्रोल यूनिट which sends you control signals for the process to start. दिस इज रजिस्टर है, एंड दिस इज, देखिए ये आपका है कंट्रोल बस, ये है डेटा बस और ये है एड्रेस बस। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक है, तो व्हाट इज कंट्रोल बस? कंट्रोल बस इज a group of wires that is used to transmit control signals, enabling the CPU to coordinate and regulate the operations of various components like memory and input-output device. ठीक है, ये कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट करता है कंट्रोल बस हमारा, जिसके कारण CPU एक्टिवेट होता है और डिफरेंट पार्ट्स को की ऑपरेशन को रेगुलेट करता है, लाइक मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। सेकंड वन इज योर डेटा बस। So this is also a group of wires that is responsible for the movement of data
between different components like CPU, memory, and peripherals. It acts as a pathway for information, enabling read and write operations and ensuring that efficient communication takes place within the system itself. ये हुआ डेटाबेस का काम. और थर्ड हमारा है एड्रेस बस. तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बस इज नथिंग मोर देन ए ग्रुप ऑफ वायर्स. तो एड्रेस बस क्या है? Address bus is a group of wires that transmits memory addresses or input hardware device addresses from the CPU to other components. Simple form में समझ सकते हैं इसको, that it acts like a postal code system telling the CPU where to find and store the data. डेटा कहाँ स्टोर किया जाएगा, ये डाटा कहाँ से पा सकते हैं हम, ये बताता है हमारा एड्रेस बस. ओके, तो सिंप्लीफाइड मॉडल में जो भी 5 पार्ट्स हैं वो हम अब डिस्क्राइब करते हैं. ओके, the first one is your arithmetic and logic unit, ALU. So this part of the central processing unit that deals with the mathematical operations such as addition, subtraction, and multiplication of integers and also of Boolean operations. It receives control signals from the control unit telling it carry out these operations. Operation कब शुरू हो सकता है? Control signal मिलने के बाद ही. This is the section of the microprocessor that is involved with executing operations of an arithmetic or logical nature. It works in conjunction with the register array, in particular the accumulator and flag register. What is the function of flag register? कोई ऑपरेशन है, उसमें 5 स्टेप हैं. किस स्टेप तक काम हो चुका है ये इंडिकेट करता है आपका फ्लैग रजिस्टर. The accumulator holds the result of operations while the flag register contains a number of individual bits that are used to store information about the last operation carried out by the ALU. Okay, this is the function of ALU. Next is your control unit. The control unit controls the movement of instructions in and out of the processor and also controls the operation of ALU. It consists of a decoder, a control logic circuit, and a clock to ensure that everything happens at the right moment. Now, what is a decoder? 3 पार्ट इसमें है. एक है डिकोडर, एक है कंट्रोल लॉजिक यूनिट सर्किट और एक है क्लॉक. डिकोडर क्या है? आपके पास नंबर सिस्टम है डेसिमल में भी. तो डेसिमल में हम 9 को लिखते हैं कैसे? 9 हो गया आपका डेसिमल में, ऐसे लिखा हमने 9. यहाँ लिख दिया हमने सफिक्स 10, मतलब ये 9 जो है सो डेसिमल नंबर सिस्टम का डिजिट है. सो कोड करेंगे हम बाइनरी में, कितना लिखते हैं इसको? 1001. ये हो गई इसकी कोडिंग. इसको बोलते हैं कोड, एनकोड करना. डेसिमल नंबर को हमने एनकोड किया है बाइनरी में, तो ये हुआ 1001. इसको रीड करते हैं कैसे? 1001 नॉट 1001. 1001 इज ए नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, ये हुआ इसका एनकोडिंग. और डिकोड करेंगे तो फिर क्या आ जा रहा है? ये डेसिमल 9. ये हुआ इसका डिकोडिंग और ये हुआ इसका एनकोडिंग. ठीक है, क्लियर? तो डिकोडर का यही काम है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको डिकोड करके देख ले क्या दिया गया है इंस्ट्रक्शन. ओके, एक है आपका वन इज योर कंट्रोल लॉजिक सर्किट. लॉजिक सर्किट्स हैं, ये लॉजिक सर्किट्स हैं, एंड है, और है, नॉट है, एक्सऑर है, एक्सनॉर है, नैंड है, नॉर है. वहां पर ये लॉजिक सर्किट है. कौन इंस्ट्रक्शन होगा और उससे कौन सा लॉजिक सर्किट को एक्टिवेट किया जाएगा, ये यहाँ तय होता है. और क्या क्लॉक? व्हाट इज ए क्लॉक? क्लॉक इज अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस. ठीक है, सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस नोन एज ए क्लॉक. तो देखो इसको हम दिखाते हैं ऐसे. सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स है, ये देखो, ये हो गया आपका ये. ओके, तो दिस इज अ क्लॉक. क्लॉक का मतलब सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स. The control unit is arguably the most complicated part of the CPU.
and is responsible for controlling much of the operation of the rest of the processor. It does this by issuing control signals to the other areas of the processor, instructing them on what should be performed next. क्या किया जाएगा ये कौन बताएगा? कंट्रोल सिग्नल से, कंट्रोल यूनिट से आया हुआ सिग्नल। जब तक सिग्नल नहीं है कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आइए देखते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्शन, एएलयू एंड control unit. So consider the operation of a digital circuit, say a full adder. It is designed with registers, logic gates, and a clock. When an instruction in the form of binary patterns of zeros and ones is given, it initiates a sequence of clock signals, activates the appropriate logic circuit in the ALU, and adds the numbers. फुल एडर जो है एक साथ 3 बीट को ऐड करता है। अगर 3 बिट ए बी सी हैं तो ए बिट ए और बी को ऐड करता है, और सी जो है जो प्रीवियस लोअर ऑर्डर क्रम से आया हुआ कैरी डिजिट है इसको ऐड करता है वो। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नल जब आएगा तब क्लॉक जब पहुंचेगा तो डिफरेंट पार्ट्स को ये एक्टिवेट करेगा, लॉजिक सर्किट ऑपरेटिव होगा और ये नंबर को ऐड करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल माइक्रो प्रोग्रामिंग, एंड दिस इज डन ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन। मान लीजिए कोई किड है, छोटा बच्चा है, उसको सिखाना है हमें कि बैठने का मतलब क्या है, खड़ा होना किसको बोलते हैं, दौड़ना किसको बोलते हैं, खाना किसको बोलते हैं, सोना किसको बोलते हैं। खाली बच्चे को बताओगे कि खड़े हो जाओ, बच्चा कुछ जानता नहीं है, वो तो वर्ड में नया आया है। तो खड़ा होना, ये जो वर्ड बताया हमने उसको, उसको दिमाग में बैठाना होगा बाई शोइंग हिम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिट डाउन। तो हमको बैठ के दिखाना होगा उसको। व्हेन आई स्पीक और व्हेन आई से सिट डाउन, इसका मतलब ये होता है। स्टैंड अप का मतलब ये होता है। एक्शन करके दिखाना हमको है बच्चे को। बच्चा के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि अच्छा, खड़ा होना मतलब ये होता है, बैठना मतलब ये होता है, दौड़ना मतलब ये होता है, सोने का मतलब ये होता है। ठीक है, बच्चे को कहेंगे दौड़ो, क्या होगा? हिज ब्रेन एक्टिवेट्स ए सीरीज ऑफ एक्शंस इन हिज मसल्स एंड लिम्स एंड ही स्टार्ट्स रनिंग। क्योंकि उसको दिमाग में बैठ गया है, जब दौड़ना बोला जाए उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो the word run here is an instruction, and the actions initiated by the brain are called microprograms. Okay, the programmer is provided the bit patterns required to initiate the microprogrammed operations in the form of instruction set of the microprocessor. ये हमने बताया आपको कि ये माइक्रोप्रोसेसर है, वो 0 1 की भाषा ही समझता है, बिट पैटर्न बताना पड़ेगा उसको। तो प्रोग्रामर जो है सेलेक्ट करता है appropriate bit pattern from the given set of for a given task and enters them sequentially in the memory through an input device. When the CPU reads the bit patterns one at a time, it initiates appropriate microprograms through the control unit and performs the task specified in the instruction. Clear? तो कोई इंस्ट्रक्शन देना है प्रोग्रामर को, तो हमने बताया कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो 0 1 के फॉर्म में होंगे। हमने उसको अपनी सुविधा के लिए एक निमोनिक के रूप में फॉर्म दे दिया है। ये ऐड बी हुआ, ऐड सी हुआ, सब्ट्रैक्ट डी हुआ। ठीक है ना? हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो चुनते हैं कौन सा इंस्ट्रक्शन है भाई हमारा। ऐड बी है, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है 0 1 के फॉर्म में, वो देंगे। सीपीयू इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और एप्रोप्रिएट प्रोग्राम को इनिशिएट करता है। कैसे करता है इनिशिएट? कंट्रोल यूनिट जो है एक सिग्नल भेजता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड ये परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन को in the specified way. Then comes your register array. This is a small amount of internal memory that is used for the quick storage and retrieval of data and instruction. जो ALU में फंक्शन हो रहा है, जोड़ने का मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, वहाँ से डेटा को क्विकली निकाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि एक्यूमुलेटर में जो है सो डाटा स्टोर होता है, वहाँ पर जितने ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल या
या लॉजिकल नेचर के, वो वहीं होते हैं और रिजल्ट वहीं पे स्टोर होता है। उस डाटा को क्विकली स्टोर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए ये छोटी मेमोरी है एएलयू के पास में, उसको हम बोलते हैं उसका इंटरनल मेमोरी। ऑल प्रोसेसर्स इंक्लूड सम कॉमन रजिस्टर्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, namely program counter, instruction register, accumulator, memory address register, and stack pointer. A register is a memory location within the CPU itself, designed to be quickly accessed for purposes of fast data retrieval. They are accessible to be used through instructions. ठीक है, अब आइए व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। The microprocessor communicates with outside world with the help of input and output devices called peripherals. पेरिफेरी का क्या मतलब? पेरिफेरी का मतलब अगल बगल का जो भी चीज है, जो भी डिवाइसेस हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरी, और इसके केस में हम बोलते हैं इसको पेरिफेरल। ठीक है, द इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर्स, डिजिटल कैमरा, joysticks, AD converters, and microphones. The keyboards may be either hex keyboard or an ASCII keyboard. आपने पढ़ा होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट्स हैं और 6 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, डिजिट कौन कौन से हुए? डिजिट हो गए आपके 0 से लेके 9 तक, 0 to 9, ये हो गया 10 डिजिट। ठीक है, और ए से लेके एफ तक, ये कितना हो गया? 6 अल्फाबेट्स। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये 10 डिजिट्स और 6 अल्फाबेट यूज होते हैं। अगर हमको लिखना है 15, ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे अगर हम बाइनरी में तो लंबा होगा, और सिर्फ एफ मेंशन कर देंगे। एफ मतलब हो गया कितना? 15, डेसिमल 15 हो गया ये एफ। बाइनरी में लिखेंगे इसको तो लंबा होगा, कितना लंबा होगा? 1111। ठीक है, ये हुआ बाइनरी में। तो छोटे करने के लिए हम हेक्साडेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। सो बाइनरी में लिखना होगा 15, अगर हम तो लिखेंगे 1111, सफिक्स 2। डेसिमल में लिखना है लिखेंगे 15, सफिक्स 10, और हेक्साडेसिमल में लिखना है तो लिखेंगे एफ, सफिक्स 6। मतलब ये कोई इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, दिस इज ए नंबर यूज इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर? तो ये जो है कॉमन कीबोर्ड जो है, तो हेक्सा हेक्स हो सकता है या ASCII कीबोर्ड हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कीबोर्ड जो है माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज करते हैं वो है ASCII कीबोर्ड। इट इट इज एन एब्रिविएशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, which is similar to a typewriter keyboard and is used to write program in just like language. The output devices include printers, plotters, digital to analog converters, LEDs, and CRTs. CRTs मतलब cathode ray tubes. अब आइए देखते हैं ये क्या है। System bus. The control unit generates signals on the system bus comprising the data bus, address bus, and control bus. ये तीनों बस कौन कौन से हैं, क्या फंक्शन है इसका, ये आपको हम बता चुके हैं। फिर भी देख लीजिए कंट्रोल बस क्या है। दिस इज a group of wires that is used to transmit control signals, enabling the CPU to coordinate and regulate the operations of various components like memory and input-output devices. ये काम हुआ कंट्रोल बस का। What is data bus? Data bus facilitates the movement of data between different components like the CPU, memory, and peripherals. It acts as a pathway for information, enabling read and write operations, and ensuring efficient communication within the system. And last है आपका address bus. So address bus is also a group of wires that is used to transmit memory addresses or input-output device addresses
from the CPU to other components. It acts like a postal code system, telling the CPU where to find and store the data. So it is used for connection between the processor, memory, and peripherals, and transfer of data between various parts. These all have separate responsibilities and characteristics. Next comes your memory. Memory is a section of microcomputer system computer that stores the instructions and data and provides them to the microprocessor when required. In order to execute a program, the microprocessor reads the instruction and data stored in the memory, performs the required operations, and then transfers the result either to the output device for display or to the memory for storing, which can be used later on. तो जैसे हमने दिखाया आपको मेमोरी में दो तरह की मेमोरी हैं, एक है रीड ओनली मेमोरी, शॉर्ट में लिखते हैं रोम. व्हाट इज दैट? रीड ओनली मेमोरी is the simplest kind of semiconductor memory that permanently stores information and has become an integral part of many digital systems because of its low cost, high speed, data, non-volatility, and system design flexibility. What is the meaning of data non-volatility? इसका मतलब है यदि पावर ऑफ भी हो जाए तो डेटा उसमें जो स्टोर है वो हम लूज नहीं करते हैं. इट रिमेन्स देयर. जब उसको बनाया गया माइक्रोप्रोसेसर को, जब उसकी ये मेमोरी बनाई गई, वो डेटा उसमें स्टोर हो गया, दैट इज परमानेंट. और पावर ऑफ होने पर भी ये डाटा लूज हम नहीं करते हैं. दूसरा मेमोरी का जो पार्ट है वो रीड और राइट मेमोरी. इट इज पॉपुलरली नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये वही सेक्शन है मेमोरी का जहां हम अपना डेटा स्टोर करते हैं. आपने काम खत्म कर लिया, अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर काम खत्म कर दिया, तो आप अपना डेटा को सेव करते हैं. वो सेव कहाँ होता है? इस मेमोरी के इस पार्ट में. ठीक है. और यदि पावर चला गया सेव करने से पहले, फिर डेटा इज लॉस्ट. ओके, इसको हम बोलते हैं रैम. तो दिस इज ए कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रेड फ्रॉम एंड रिटर्न टू. इसे पढ़ सकते हैं, इसमें हम लिख भी सकते हैं. इन नॉर्मल ऑपरेशंस इट अलाउज द यूजर टू एक्सेस और रीड or alter write to individual storage locations within the device. वहाँ से रीड कर सकते हैं और किसी दिए हुए एड्रेस पर हम अपना डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं. The choice of read or write operations is normally determined by a read-write signal applied to the device. The RAM devices are typically read-write memories. This type of memory can be contrasted with read-only memory, which cannot be modified after it is written. रोम जो है उसमें कोई आप डेटा बाद में स्टोर नहीं कर सकते हैं. उसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको आप बदल भी नहीं सकते हैं. ठीक है. सो रैम इज ऑल्सो नोन एज यूजर मेमोरी एज इट इज यूज्ड टू स्टोर यूजर प्रोग्राम एंड डेटा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर. आई अज्यूम यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.